Welcome in class ninth physics and the chapter force and law of motion. Okay, now in this video we will discuss some kinds of force, that is balance and unbalanced forces. Okay, in figure 9.3 shows a wooden block on horizontal table. ठीक है, ये एक बॉक्स है, एक टेबल है जिसपे एक बॉक्स रखा हुआ है. Two string X and Y are tied to the two opposite faces of the block. Two string X and Y are tied to the two opposite faces of the block. ठीक है, X और Y दो स्ट्रिंग हैं और उससे उसको बांधा गया है. If we apply a force by pulling the string X, the block begin to move to the right. अगर हम X को खींचेंगे तो ये राइट की तरफ मूव होगा. सिमिलरली इफ़ वी पुलिंग द स्ट्रिंग वाई द ब्लॉक मूव्स टू द लेफ्ट. अगर हम इसको खींचेंगे तो ब्लॉक लेफ्ट की तरफ मूव होगा विथ इक्वल फोर्सेस. सॉरी, बट इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स विथ इक्वल फोर्सेस द ब्लॉक विल नॉट मूव. अगर हम दोनों तरफ से सेम फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक अपनी जगह पे रुका हुआ रहेगा, मूव नहीं होगा. ओके, the block will not move. Such forces are called balance forces and do not change the state of motion, rest or of the motion of an object. Okay. Now let us consider a situation in which two opposite forces of different magnitude will pull the block. In this case, the block would begin to move in the direction of greater forces. ठीक है, अब अगर हम अनइक्वल फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है जिधर फोर्स ज़्यादा होगा उधर ब्लॉक क्या करेगा, मूव कर लेगा. जैसे मैं आपको एक रस्सा कसी का एग्जांपल बताता हूँ. रस्सा कसी सभी लोग जानते हैं. ठीक है, ये रस्सी है, कुछ लोग इधर खींच रहे हैं, कुछ लोग इधर खींच रहे हैं. ठीक है, तो जिधर फोर्स ज़्यादा होगा उधर ये रस्सी मूव करेगी. मान लो इधर फोर्स अगर ज़्यादा है तो ये रस्सी इधर मूव करेगी. तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है फोर्सेस का वो क्या है, डिफरेंट है. ठीक है, तो thus the two forces are not balanced and understood force act in the direction the block moves. This suggests that an unbalanced force acting on an object bring it in motion. ठीक है, तो इसमें हमने इक्वल फोर्सेस एंड अनइक्वल फोर्स, या हम ये बोल सकते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया है. ओके, what happen when some children try to push a box on rough floor. ठीक है, ये कुछ चिल्ड्रंस हैं, ये इसको मूव कर रहे हैं इस तरीके से. ठीक है, such box with a small force, the box does not move because of friction acting in the direction opposite to the push. This friction force arises between the two surfaces in contact, in this case between the bottom of the box and floor's rough surface. If the balances pushing force and therefore the box does not move, the children push the box harder but the box still does not move. This is because the friction force still balances the pushing force. Okay, if the children push the box harder still, the pushing force becomes bigger than the friction. There is a unbalanced force, so the box start moving. ठीक है, ये बॉक्स है जिस पर चिल्ड्रन फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है, तो जब इस पर स्मॉल फोर्स लगेगा तो ये मूव नहीं होगा. थोड़ा सा और फोर्स बढ़ाया तो ये क्या होगा, तब भी मूव नहीं होगा, बिकॉज एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है. अप्लाइड फोर्स इधर है और ये फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉक्स मूव नहीं, लेकिन जैसे ही हमने इन चिल्ड्रन ने इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा दिया, ठीक है, जो इस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर जाए तो इजीली ये बॉक्स क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएगा. ओके, व्हाट हैपन व्हेन we ride a bicycle? When we stop pedaling, the bicycle begins to slow down. This is again because of the friction force acting opposite the direction of motion. जब बाइसिकल चलाते हैं और हम पेडल मारना बंद कर देते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे बाइसिकल रेस्ट कंडीशन में आ जाती है. दिस और ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू
opposite forces, that is the friction forces. In order to keep the bicycle moving we have to start pedaling again. और हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब पेडलिंग मारना शुरू करना पड़ेगा. It thus appears that an object maintains its motion under the continuous application of unbalanced forces. However, it is quite incorrect. An object moves with a uniform velocity when the forces, pushing forces and friction forces acting on the object are balanced and there is no net external forces on it. ठीक है, ये आप बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन लिखेंगे ये यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ तक. If an unbalanced force is applied on object, there will be a change either in the speed or in the direction of motion. Thus, to accelerate the motion of an object, an unbalanced force is quiet, and the change in its speed would continue as long as this unbalanced force is required. However, if this force is removed completely, the object would continue to move with the velocity it is acquired till then. ओके, क्या बोला गया है, जब अनबैलेंस फोर्स हम लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो ये मूव होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे स्मॉल फोर्स था, बॉक्स मूव नहीं हुआ, फिर स्मॉल फोर्स था तो भी नहीं हुआ. जैसे हमने एक अनबैलेंस फोर्स लगाया, मतलब अप्लाइड फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा है, तो ये बॉक्स जो है वो मूव होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर आपने दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो समझी कि बैलेंस फोर्स क्या होता है, इक्वल फोर्सेस. ठीक है, जब इक्वल फोर्सेस अप्लाई होगा, ठीक है, इक्वल फोर्सेस इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा तो वो फोर्सेस कैसा होगा, बैलेंस फोर्स होगा. जब अनइक्वल फोर्सेस की हम बात करेंगे, ठीक है, तो वो फोर्सेस कैसा होगा, अनबैलेंस फोर्सेस. अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अब हम फोर्स से रिलेटेड कुछ फिनोमिना की स्टडी यहाँ पर करेंगे. ओके, बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, गैलीलियो डिड्यूस्ड दैट ऑब्जेक्ट मूव विथ अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम. ठीक है, गैलीलियो एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन से मूव कराया कांस्टेंट स्पीड से, व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम, उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा. आप कुछ जानते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखिए डायग्राम में ये इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया तो ये बिना फोर्स लगाए नीचे आ जाएगी. ही ऑब्जर्व दैट व्हेन अ मार्बल रोल्स डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस. और उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम मार्बल रोल्स होगी इस इंक्लाइन प्लेन से नीचे आएगी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी. इन दिस नेक्स्ट चैप्टर यू विल लर्न दैट द मार्बल फॉल्स अंडर द unbalanced force of gravity as it rolls down and attains a definite velocity by the time it reaches the bottom. ठीक है, जब इस मार्बल बॉल को हम उस इंक्लाइन प्लेन से नीचे की तरफ करेंगे तो वो एक उसके ऊपर ग्रेविटी लगेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब अर्थ अपनी तरफ खींचती है, इसकी वजह से क्या होगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और वो नीचे आ जाएगी. ठीक है, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस व्हेन इट्स क्लाइम अप. जब उसकी वेलोसिटी, जब ये वापस ऊपर की तरफ जाएगी, एक देखिए एक इंक्लाइन प्लेन इधर है एक इधर है, जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. क्यों रिड्यूस होगी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है इसमें. Shows a marble resting on an ideal frictionless plane incline on both sides. Galileo argued that when the marble is released from the left, it would roll down the slope and go up on the opposite side to the same height from which it was released. ठीक है, उसने गैलीलियो ने एक कंक्लूजन निकाला कि जब हम लेफ्ट से उसको इंक्लाइन प्लेन से नीचे की तरफ छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो नीचे आएगी और जिस हाइट से हमने छोड़ा था एक बार तो उसी हाइट पर वापस ऊपर की तरफ जाएगी अपोजिट प्लेन पर, जो अपोजिट इंक्लाइन प्लेन इधर है. इफ़ द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल
then the marble will climb the same distance that it covered while rolling down. ठीक है, सेम डिस्टेंस जो वो कवर करेगी. If the angle of inclination of right side plane are gradually decreases, then the marble would travel further distances till it reaches the original height. जब थोड़ा सा प्लेन को हमने क्या कर दिया, इंक्लिनेशन मतलब थोड़ा सा उसको झुका दिया नीचे की तरफ, ठीक है, तो वो और आगे की तरफ जो है वो जाएगा. द मार्बल वुड कंटिन्यू टू ट्रेवल, हाँ, इफ द राइट साइड प्लेन were ultimately made horizontal, the marble would continue to travel forever trying to reach the same height that it was released from. ठीक है, सेम हाइट पर वो ऊपर की तरफ जाएगी. द बैलेंस फोर्स ऑन मार्बल इन दिस केस आर जीरो. अनबैलेंस फोर्स इन दिस केस आर जीरो. It thus suggests that an unbalanced force is required to change the motion of marble, but no net force is needed to sustain the uniform motion of the marble. ठीक है. In practical situation, it is difficult to achieve a zero unbalanced force. This is because of the presence of the frictional forces acting opposite to the direction of motion. Thus, in practice, the marble stops after traveling some distances. The effect